पालयन्नवाः नन्दद्वारान्तरालरणानित्यमुट्टाङ्गरेजने ईश्वरेगुं सर्वभूतानां सामिगोभक्वजे श्रियं भूरि विमानदलिलानदक्षते कमले जुमले नारदुष्पदे नावरि नमवरि भूरि हिरकटाः प्रणभरमेण्यो मन्ये श्रीनाथ संभृक्षरे नमः वन्द्यारुत्तरे नमानन्दासनातमा शिवानुवादाय पद्मासनाय महालासनातमामलासनोर्मध्ये ग्लाम्ग्लोक्यं गणपत्यासनाय नमः साधिकं विराज ईशानमूर्धा ईशानमूर्धानमामूर्धे परम्याय महाभक्ते अमोदगदानमागदजनेयाय महानामोदगदानमूर्धे नमः भाजयोः अमीराय महामूर्धाय नमः भक्त्याय महाभक्तये तागलानमानाभोयाय महाभाजयोः नमः सर्वाङ्गयोजानं गुर्जाद सूर्याज्ञानलोचनं मणिरसत्कोटीरहस्तं महान् नागेन्द्रानसुन्दरं गरजुगां भोजेङ्गुडं बालकं मण्डलञ्जपञ्चतनं वस्तद्वये मेघना मालालङ्करमन्यमो भुजविलते यज्ञो भविनो मजे
அந்த பழைய மாலை இருக்குல்ல அதை எடுத்துட்டு வாங்க அங்கே இருக்கும்
ஓம் சக்தி பராசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி பராசக்தி பராசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி பராசக்தி 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 ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி பராசக்தி பராசக்தி ஓம் சக்தி பராசக்தி ஓம் சக்தி பராசக்தி பராசக்தி இப்பொழுது பூதசுத்தி முடிந்து யாகவேலி சாலைக்குள்ளே இந்த மகாகுணம் வந்திருக்கின்றது. ஏற்கனவே புனராவர்த்த பணிகள் தொடங்க வேண்டும் என்று வேண்டி இந்த இடத்திலே பாலாலய சுபமுகூர்த்தம் நடத்தி அதற்கு பின்னாலே கோபுர பணிகள் தொடங்கினோம். அப்பொழுது சுவாமியுடைய சக்திகளை அந்த அம்மனுடைய ஆளுகையிலே சிறப்புமிக்க ஒரு ஆளுகையாக அனுகிரகித்து அந்த பாராலயம் செய்யப்பட்ட குளத்திலிருந்த சக்திகளை இந்த புனித குளத்திற்கு கொண்டு வந்து இப்பொழுது யாகவேலி சாலைக்குள்ளே இந்த குளம் வந்திருக்கின்றது. இந்த யாகவேலி சாலையானது 4 வாசல்கள், 4 முக்திகள். சாரோவ முக்தி, இறைவனுடைய கைலாயத்துக்கே செல்ல வேண்டும் என்று நாமக்கரசர் உழவாரப் பணிகளை எல்லாம் செய்து அற்புதமாக அனுக்கிரகதாரியாக இருந்து கைலாயத்திலே சென்று தன்னுடைய முக்தியை பெற்றார். அது சாரோவ முக்தி, சாயுஜ முக்தி. முக்திக்கு கோபுர சிலையில் இருந்து அம்பிகை இறந்து வந்து அவரை மடியிலே அமர்த்தி அவருக்கு அமுதம் ஊட்டினாராம். அவர் தன்னுடைய பணிகளை எல்லாம் செய்த பின்னால் இறைவனோடு இரண்டர கலக்க வேண்டும் என்று யாகவேலி கையிலே இறங்கி முக்தி பெற்றார். அது சாயுஜ முக்தி. அடுத்து சாரோக முக்தி, சுந்தரர் இறைவனுக்கு வேண்டிய பணிவிடைகளை எல்லாம் செய்து உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேள் என்று சொன்ன உடனேயே நான் லிங்க வடிவமாக மாற வேண்டும் இறைவா என்று வேண்டினாராம். அது சாரூப முக்தி. மாணிக்கவாசகர் உங்களுக்கு தெரியும், மதுரை மண்ணிலே அதிவீரராம பாண்டியனிடத்திலே மந்திரியாக இருந்து போர்க்களத்துக்கு குதிரை வாங்க வேண்டும் செல்லும் என்று வேண்டி திருவாரூர் சென்று அந்த திருவாரூராருடைய அவருடைய கணிப்பிலே அவர் மயங்கி அங்கே இருந்து குதிரை வாங்க சென்ற பணத்தை எல்லாம் செலவழித்து திருக்கோயிலை கட்டினார். திருவாரூரிலே குதிரை வாங்க போவதை காணவே என்று சொல்லி அங்கே திருவாரூரிலே உழவார பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றார், கோயிலை கட்டி கொண்டிருக்கின்றார் மாணிக்கவாசகர் சொன்னவுடனேயே மன்னன் அதிவீரராம பாண்டியன்
அவரை கைது செய்து சிறைச்சாலையிலே இட்டார். கனவிலே சொல்லி பாண்டியவர்களிடத்திலே சொல்லி அதற்கு பின்னால் நரியை பரியாகமாக்கிய அந்த சம்பவம் மதுரை மண்ணிலே நடந்தது. அதற்கு பின்னால் மாணிக்கவாசகர் தேவாரம் திருவாசகத்தை இயற்றி திருவாசகத்திற்கு முருக நாம் சேவை செய்ய வேண்டும் நாடகத்திலே ஏதாவது ஒரு கதாபாத்திரத்தை ஏற்று நடித்து உன்னுடைய பக்தராக இருந்து மக்களாலே பாராட்ட பெற்று உன் அருகிலேயே நான் நிற்க வேண்டும் இறைவா என்றாராம். இது சாயுஜ முக்தி, சாரோக முக்தி, சாரூப முக்தி ஆக 4 முக்திகள் கொண்டது இந்த 4 வாசல்கள். 4 வேதங்களுக்கு அனுக்கிரகமாக தோன்றி உள்ளது இந்த 4 வாசல்கள். அன்பிற்கு இணையவர்களே, கண்களுக்கு சேவை சாதிக்க இருக்கின்றார். இப்பொழுது பெரியோர்கள் அந்த திரை சிலையை விலக்கி உங்களுக்கு தரிசனம் காட்ட தயாராக இருக்கின்றார்கள். அதே வாத்தியாரே இது போன்றது ஒரு அழகை கும்பாபிஷேகத்தில் மட்டும்தான் காண முடியும். அன்பிற்குரியவர்களே, இந்த மண்ணிலே வாழும் எல்லோரும் ஐஸ்வர்யத்தை பெற வேண்டும். ஆ என்பது ஆன்மா, அந்த ஆன்மாவை நயப்படுத்தும் இடம் ஆலயம். கும்பாபிஷேகம் சேவித்தவர்களுக்கு திருவருள் கைகூடும். இந்த மண்ணிலே ஜீவனாக பிறந்து 12 ஆண்டுகள் தினந்தோறும் மன மொழி மெய்களினாலே உங்களிடம் நான் நிறைய கடன்பட்டிருக்கின்றேன். உங்கள் சேவை என்றென்றைக்கும் மகத்தான ஒன்று. எல்லோரும் நலம் பெற வேண்டும். நம் பிள்ளைகள் அனைவரும் உயரமான இடத்தில் அமர வேண்டும். அவர்கள் எல்லோராலும் பார்த்து போற்றப்படும்படியான பாக்கியத்தை பெற வேண்டும். நாகூர் மண்ணிலே எல்லோரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும். இங்கு இல்லாமல் என்னாலும் நிலைபெற வேண்டும் என்று வேண்டி மக்கள் இந்த அன்னையிட்ட கட்டளையாக கருதி இந்த மகா கும்பாபிஷேகத்தை நடத்துகின்றீர்கள். 5 குண்டங்கள் போட்டா போதும். 3 குண்டம் போட்டா என்ன சொல்ல போறீங்க? அம்பிகைக்கு பஞ்ச ஆக்னி, சிருஷ்டி, சிதி, சங்காரம், திரோபாவம், அனுகிரகம். சிருஷ்டி படைத்தல், சிதி காத்து. மூலமந்திரம் ஜபித்வா சிந்து சரஸ்வதி யமுனா கோதாவரி நர்மதா கிருஷ்ணா பீமர்த்தி பல்புஷரயோ ஸ்ரீகண்டகே கௌமதி பிரஜாகரஜோ வேத்ராவதி ஜாதஜாஹ நத்ய ஸ்ரீ அரபாத மங்கஜ பவா குர்வந்து மா மங்களம். நமோ மகர வாகனாய பாசகஸ்தாய நமः. தும்யம் வருணாய நமோ நமः. வருணாய மகாதேவ கோடி பிரார்த்தன புஷ்பாஞ்சலி சமர்ப்பயாமி. கீர்ய புண்ணியாகவாதன ஜப கர்மணி சர்வேभ्यो ब्राह्मणेभ्यो நமோ. யோயம் புண்ணியாகவாதன ஜப கர்மணி தாம்பூலம் நிவேதயாமி. வத்யாப்தே மந்திரபுஷ்பாஞ்சலிம் சமர்ப்பயாமி. மூலமந்திரம் ஜபித்வா வர்தகஸ்தேன சமர்ப்பயாமி. விபுஜமகிலலோகம் சக்தலங்கம் த்விநேத்ரம் குமுதயுகலகஸ்தம் கோமலம் பீஜபார்ஷ்வே. சகல புவனபாலிம் முன்யசே கும்பமத்யே. ஓஷதீனாபதே சந்திரஹ வர்திகா ரோகிணி பதா தேவி
प्रथमकाल यागसला पूजा आरो मध्ये गणोज्ञां देगी मे ससी जनां प्रार्थ्य हरिलेनाश्रेणा संप्रोक्ष अवजेना पुण्य रक्षां आधार सुंदरे नमः आनंदाद्रमा वासुदेवे नमः जय महागरुडाय नमः बालाद्रमा कुलिकाभ्यो नमः प्रार्थनां समर्पयामि एवं वेद यो भावायतनं वेद भगवान् भवति मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मूलमन्त्रं जपित्वा समर्प्य प्रार्थ्यां निमेल पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजोधारं रत्नधातं योर्जयत्वा वाजवन्त देवो पश्यमितार्पयतोत्रमाय वर्माणे राजाके भीतर गृणानाभ्यदान दिगोदारब्धे परिवेशे देवेरपिण्डलाभो भवन्तु विषयोरभिश्रवन्धुनः यो ब्रह्मा ब्रह्मणमुच्चार प्राणे शिरकृत्तिवासा पिनागि ईशानो देवसनायोर्दधातु तस्मै भूमि अभिषावृतेन राजमानशरीरस्य मध्या प्रोजमानो कर्मर्जुर्यागादे पाशानवनुध्यघोरानिगायशेनो कृतवन्तु देवः ज्योतिर्ब्रह्मपत्ने च गर्भं यवाददात् पुरुरूपं च जन्तौ सुवर्णरम्भग्रहमर्कमर्चं दवायुषे वर्धजामो कृतेन श्रियल्लक्ष्मी मोबलामम्बिकां गां लड्डीं च जामिन्द्रसेने द्युगावो विद्यां ब्रह्मजोनिकं स्वरूपाभिहायुषेणो दर्पगामो कृतेन दाक्षायण्यः सर्वजोन्यः सजोन्यः सहस्रसो विश्वरूपा विरूपा सदयस्य योग्यायुषेणो कृतविदन्दुषन्दा दिव्यागणामरूपा पुराणायचिदो न प्रमुत्तन्तु वीरान् तेभ्यो जुहोमि बहुधा कृतेन वानप्रजागं रीरिषो मोदवीरान् पुरस्ताद्यदं बभूव जतो बभूव भुवनस्य गोपा यमप्येति भुवनगं साहाम्बरागे सनो हविर्घृतमिहाजुषे हेतु देवः नुद्रानादित्या मरुदोदराद्या नृपोऽङ्गस्यान् गन्धर्वागिश्च पितृगिश्च विश्वान् त्रिगुण सर्पान् साङ्गिरदोदर्भान् गतकं हुत्वा स्वायुष्यामहयाम सस्वत् त्वन्नान्दमत्सर्वजच्च जगन्या धारामथुश्च्युत उत्सन्दु हृते अक्षितम् शान्ति शान्ति जपं समर्प्य பஸ்மலேபனம் குருஜாத் விபூதி எடுத்துக்கங்க இப்படி அபிவந்தனம் பண்ணிக்கிற வேண்டிய ஓம் திரியம்பகம் யஜாமஹே சுகந்தம் புண்ணியவர்தனம் वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृदात् मृगस्तामक्षत्र प्रवृद्धवृष्णीयं दुष्टभोजसुविधमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदरेण मध्यं विदं वादेन सकरेण रक्षाम् பேரன்பு சார்ந்த பக்த கோடி மென்பர்களே, நமது ஆலயத்தில் இன்றைய தினமான மாலை சரியாக 4:30 மணி அளவில் மங்கள இசையுடன் துவங்கப்பட்டு பூத சுத்தி, அதனைத் தொடர்ந்து கும்பாலங்கார பூஜை, அதனைத் தொடர்ந்து கலாகர்ஷணமானது செய்யப்பட்டு ஆலய பிரகாரம் வந்து யாகசாலை பூஜையில் முதலாவதாக புண்ணியாகவாதனம், அதனைத் தொடர்ந்து அங்குரார்ப்பண பூஜையானது நடைபெற்று ரக்ஷாபந்தன பூஜையானது நடைபெற்றிருந்த ரக்ஷாபந்தனம் வந்திருக்கக்கூடிய இந்த ஆச்சாரிய பெருமக்களுக்கு ரக்ஷாபந்தனமானது அணிவிக்கப்பட்டு அதனைத் தொடர்ந்து இந்த இடத்துல பஞ்சாசன பஞ்சமாவரண பூஜைகளானது நடைபெற இருக்கிறது. பக்த கோடிமை என்பவர்கள் அனைவரும் விரைவாக யாகசாலை முன்பாக வந்திருந்து அம்பாளின் அருளை பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். மரணம பார்வதி பதரி ஹர ஹர மகாதேவா. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவருக்கும் இறைவா போற்றி. வாத்தியவாசிங்கம். நாகராஜன் அண்ணா அவர்களுக்கு தற்பொழுது ரக்ஷாபந்தனமானது நடைபெற்றது. தொடர்ச்சியாக
எனது வாத்தியார் நமது ஆலயத்தின் சார்பாக அற்புதமாக ரக்ஷாபந்தனம் நடைபெறுகிறது. அடுத்தபடியாக ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களுக்கு தற்பொழுது காப்பு கட்டக்கூடிய வைபவமானது ரக்ஷாபந்தனமானது சேவிக்கிறார்கள். ஓம் நிருத்யம் ஜகாக ருத்ராக நீலகண்டாய தினகரன் அண்ணா அவர்களுக்கு தற்பொழுது ரக்ஷாபந்தனமானது சேவிக்கிறார்கள். ஓம் அடுத்தபடியாக ராஜராஜன் அண்ணா அவர்களுக்கு தற்பொழுது காப்பு கட்டக்கூடிய நிகழ்ச்சியானது தற்பொழுது நடைபெறுகிறது. ஓம் சத்யம் ஜகாய ருத்ராக சூழினி சுரேசண்ணா அவர்களுக்கு தற்பொழுது ரக்ஷாபந்தனமானது தற்பொழுது நடைபெறுகிறது. ஓம் ஜகாக ருத்ராக நீலகண்டாக சம்பவே அடுத்தபடியாக ரங்கராஜன் அண்ணா அவர்களுக்கு தற்பொழுது ரக்ஷாபந்தனமானது நடைபெறுகிறது. அடுத்தபடியாக கார்த்திகேயன் அண்ணா அவர்களுக்கு தற்பொழுது ரக்ஷாபந்தனமானது சேவிக்கிறார்கள். ஓம் சிவம் சிவக ரக்ஷாந்தம் சிவாத்மானம் சிவோத்தமோ रक्षाबंधन मुहूर्त काले शुभ मुहूर्तः भवन्तः महान्तो अनुग्रहणन्तु मुहूर्तोऽस्तु शुभ्रदिष्टितमस्तु பெருன்பு சார்ந்த பக்தகோடி மென்பர்களே, நமது ஆலயத்தில் இப்பொழுது அதாவது இந்த குண்டத்துல உட்கார்ந்திருக்கக்கூடிய ஆச்சாரிய பெருமக்களுக்கு ரக்ஷாபந்தனம் அதாவது காப்பு கட்டும் நிகழ்ச்சியானது நடைபெற்றது. அதனை தொடர்ந்து சுவாமி அம்பாளுக்கு வந்து பஞ்சாசன பஞ்சமாவரணம் என்ற பூஜைகளானது நடைபெற்று அதனை தொடர்ந்து திக்பாலகர் பூஜை என்று சொல்லக்கூடிய பூஜைகளானது நடைபெற இருக்கிறது. பக்தகோடி மேன்பர்கள் அனைவரும் யாகசாலை முன்பாக வந்திருந்து பூஜையில் கலந்து கொண்டு
அம்பாளின் राजन महाप्रस्थे ब्रह्मणे नमः दक्षिणोरो आव नमः दक्षिण जानुनी सतमन नमः दक्षिण जंघायाम सीद नमः दक्षिण पादे ओम नमः मूर्धिनी प्रीम नमः भूर्वोर्मध्ये लौ नमः चुबुगे गणपते नमः उरसी सर्वजनन्मे नमः नाभो तम नमः शिरसि तमे नमः कंठे धीमहि नमः नाभो तन्दिने नमः जान्भोः ब्रह्मं सर्वविनायक सिद्धिविनायक स्वामिने नमः सर्वाङ्गेषु ओम वशशतलयुक्ते सौम्यमाधारपद्मे तरुणमरुणगात्रं मरणास्यं गणेशम् करयुगलमनन्यं चिन्तयेत् विघ्नराजं ब्लं ब्लं सर्वविनायक सिद्धिविनायक स्वामिने नमः विद्यादेहाय नमः यो नमः गणानाहन्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवेन उपमशर्वस्तमं राजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पदहान शृण्वन्नो दिवसीदसाधन आवाहनमन्त्र्यां सत्योजातेन भाग्यां वामदेवेन संस्था सन्निधान्यं अघोरेण सन्निधाभ्यां तत्पुरुषेण निर्जनेमियं ईशानेन वन्द्यां सुष्मस्वागतन्तविनीशोक्तमिति विज्ञाप्य स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानगम् प्रीतिभावेन कुम्भेषु सन्निधिं कुरु सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो सुमुखो गणेश प्रसीद प्रसीद इति विज्ञाप्य हृदयाशरङ्गस्थानेषु नमः शिरसे नमः ओम शिकाय नमः ऐं कवचाय नमः नेत्रेभ्यो नमः गहस्त्राय नमः इति विन्यस्य मन्त्रेणासं प्रोक्ष्य पदे नमः वन्द्यां नवाम्बिका पीठशक्त्यासनाय नमः वर्णाजलकेसि कट्ककेटकधारी यात्वा वीरेश्वरी देवी गन्धपुष्पादिनाथयेते नमः योनिमुद्रां दत्त्वा अर्घ्यं दत्त्वा आवरणपूजातमिति प्राप्य प्रथमावरणे ओम ईशानमूर्धाय नमः ओम अघोरदयाय नमः ओम सत्योजातमूर्तये नमः ऐं शिरसे नमः ऐं कवचाय नमः गृहस्त्राय नमः विद्यावरणे वरदाय नमः वीराय नमः क्षत्रियाय नमः गजकर्णकाय नमः तृतीयावरणे सुप्रबोधाय नमः शुभकराय नमः मूषिकाय नमः गिरिदुण्डाय नमः चतुर्थावरणे इंद्राय नमः अग्नये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः दक्षिणे ब्रह्मणे नमः उत्तरे विष्णवे नमः पंचमावरणे नाराजाय नमः त्रिशूलाय नमः पाठाय नमः अंकुशाय नमः कुशलाय नमः खड्गाय नमः पंचमावरण देवता सहितागे सिल्व गणपतगे नमः सिद्धि महागणपतगे नमः येदेशामा वाक्ये अवागन स्थापन निरोधन सिद्बंधन वकुंधन तालश्री अंकुशमुद्रां प्रदर्श्य यं दत्वा प्रदानकं पूजयेत् पार्श्वेशं प्रोक्षे आनंदासन सिंहासन योगासन पद्मासन मध्ये मुनीश्वर महाकालासनाय नमः मुनीश्वर महाकाल स्वामी देवता मूर्धये नमः यासादिकं विधाय ईशानमूर्धाय नमः मूर्धे ओम हुम अघोरदयाय नमः हृदये ओम हम सत्योजातमूर्ते नमः पादयोगो ओम ऐं शान्तिकलाय नमः वक्त्रे ओम दिवीं प्रतिष्ठाकलाय नमः नाभो जटाधराय नमः शिरसि विद्महे नमः मुखमण्डले शूलहस्ताय नमः हृदये धीमहि नमः नाभो नमः पूर्वो ईश्वराय नमः जान्भोः नमः पादयोः सर्वाङ्गेषु ज्ञानं गुरुजात् वन्दे राजस्वरूपकं दृढगणं बालार्ककोटिप्रभं हस्ते पुस्तकधारिणं जपमणिं रुद्रस्य तेजोज्ज्वलं वीणादण्डधरं जडामकुटितं पीताम्बरालङ्कृतं भक्ताभीष्टवरप्रदं भयहरं त्यागेत् मुनीशं भजे जटाधराय विद्महे शूलहस्ताय मुनीश्वर प्रचोदयात् मुनीश्वराय नमः येदेशामा वाक्ये अवाघनस्थापन निबन्धनवकुण्डन तालत्रय नमस्कारमुद्रां धरणगे स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकं प्रीतिभावेन गुण्ठेषु सन्निधिर्भव प्रार्थ्य हृदयाय नमः शिरसे नमः कवचाय नमः
महास्त्राय नमः आत्मतत्व विद्यातत्व शिवतत्वादिपति मुनीश्वराय नमः मूरसि प्रवाहतो रौद्रेणानिकेन पाहि माहात्म्ये विब्रूहि मामाहि गुंशीहि मुनीश्वराय नमः सम्पूज्यर्घ्यं दत्त्वा प्रथमावर्णदेवताभ्यो नमः वर्णदेवताभ्यो नमः चतुर्थावर्णदेवताभ्यो नमः वर्णदेवताभ्यो नमः पंचाशर पंचमावन सहिताय सत्य परिवाराय सर्वतत्वाधिपतये हां ओं मुनीश्वर शिवाय नमः अवाक्य अवाहनादि मुद्रामदस्यार्घ्यं दत्त्वा प्रधान वेदिकायां प्रवेश्य संप्रोक्ष्य दपूर्णशिराजेनां क्षेरोदसितविग्रहां मूलोबीजां वराकारा वरदां भयप्रदां पाशां कुशधरां शक्तिं गिरियां आधाररूपिणी ओं ह्रीं आधारशक्तये नमः पूर्वाचक्रदक्षो ओं ह्रीं अनन्ताय नमः ओं ह्रीं वासुवने नमः ओं ह्रीं नक्षत्राय नमः ओं ह्रीं कर्पूरकाय नमः ओं ह्रीं शङ्खमालाय नमः ओं ह्रीं गुलिकाय नमः ओं ह्रीं पद्माय नमः ओं ह्रीं महापद्माय नमः तन्मध्ये ईशान्यां ओं ह्रीं अनन्ताशनाय नमः पृथ्वीगन्धं कलादीकनानकं भावकण्डकं शुभमाया महापद्मम् अनेकधरसंकुलं तन्मध्ये कमलं वेदं भूम्याभ्यस्थितं ततः ध्यात्वा ब्रह्मशिलामध्ये इजे देवं देव्यासनं नन्दनीलसंवादं सहस्रपनमण्डितं हृदयाञ्जलिसंयुक्तम् एकवक्तं चतुर्भुजं तन्मध्ये ओं ह्रीं अनन्ताय नमः चित्तकेसरिप्रज्ञानन्दपृष्ठदर्शिनः कृतत्रेदादिरूपेण देव्यासनपादुकान् चितकास्मेरदारादिचारुजमाकृतिस्मरन्नाग्नेयादिसपर्यन्तं कोणे सुचेता ब्रह्मं ह्रीं धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः कृष्णं स्वेदं पूर्वभागे श्वेतरक्तं तु दक्षिणे रक्तं पीतमक्षमनः पीतकृष्णं तप्तेसि चत्वारिगात्रकान्येवं अनन्तेश्वलानिदो पूर्वादिशो ओं ह्रीं धर्माय नमः ओं ह्रीं ज्ञानाय नमः ओं ह्रीं वैराग्याय नमः ओं ह्रीं ऐश्वर्याय नमः दक्षिणे राजसाय नमः उत्तरे तमसाय नमः मध्ये सात्विकाय नमः तन्मध्ये सिंहासनाय नमः बोधरूपेण भुवनेषु माताहृदयवादयः रक्तशुक्लप्रभं मिश्रं सामञ्जगोवर्णकम् ओं ह्रीं कृतयुगाय नमः ओं ह्रीं त्रेतायुगाय नमः ओं ह्रीं द्वापरयुगाय नमः ओं ह्रीं कलियुगाय नमः अव्यक्तो नेदि कालः कदाचिजुष्टयं व्यक्तस्फुरिका भासो नेद्यस्याञ्जनद्युतिः कालो ढादिमि पुष्पाभः कला भिन्नाञ्जनप्रभापरगादिष्फलिका प्रोक्तः मध्यपादस्तु केशवः पूर्वादि ओं ह्रीं अव्यक्ताय नमः ओं ह्रीं निकेतये नमः ओं ह्रीं कालाय नमः ओं ह्रीं कलाय नमः तन्मध्ये ओं ह्रीं केशवाय नमः ईशान्य ओं ह्रीं उद्वस्तदनाय नमः आदिक्यसदृशं गन्धं नादं नीलशमप्रभं यशनं हेमवर्णापमग्ने मुक्तावलियुतम् ओं ह्रीं मधुराय नमः लालाय नमः ओं ह्रीं उपदरेभ्यो महाकेशरेभ्यो नमः ओं ह्रीं क्रियाय महावाचे नमः ओं ह्रीं वामाय महाज्येष्ठाय नमः तन्मध्ये पद्मासनाय नमः रौद्रे नमः पद्मासनमध्ये ओं ऐं ह्रीं श्रीं शीतला परमेशे मारीं विभापरिवदासनाय नमः भीमरुद्राणि देवदासनाय नमः याथादिकं विधाय ओं तत्पुरुषभद्राय गौरी नमः भद्रे ओं हि मामदे गणाम्बिकाय नमः नाभो ओं ईशानमूर्धाय उमाय नमः ऊर्ध्वमूर्धिने ओं अघोरमूर्धाय लिङ्गाय नमः दक्षिणमूर्धिने ओं मगं सत्योजतमूर्धाय अम्बिकाय नमः पश्चिममूर्धिने ओं तत्पुरुषभद्राय गौरी नमः पूर्ववक्त्रे ओं हि वामदेववक्त्राय गणाम्बिकाय नमः उत्तरवक्त्रे ओं ओं शान्त्यदिकलाय नमः मूर्धिने ओं गुरु विद्याबलाय नमः हृदये ओं बलं विवर्तिकलाय नमः पादयोः ओं ह्रीं विद्याय नमः वक्त्रे ओं ह्रीं श्रद्धाय नमः गले ओं ह्रीं मेधाय नमः दक्षिणबाहो ओं ह्रीं स्वस्ते नमः नाभो ओं ह्रीं पालिन्ये नमः मुखे ओं ह्रीं दृष्टाय नमः दक्षिणोरो ओं ह्रीं कामाय नमः दक्षिणजान्वान् ओं ह्रीं प्रजाय नमः दक्षिणजङ्घाय ओं ह्रीं भूते नमः दक्षिणपृष्ठे ओं ह्रीं शान्ते नमः दक्षिणपार्श्वे
वामपादे ओम ह्रीं धान्ये नमः दक्षिणपादे नमः वामहस्ते ओम ह्रीं स्वस्ते नमः दक्षिणहस्ते नमः दक्षिणस्तने ओम सत्याय नमः दक्षिणस्तने दूते नमः वामस्तने ऐं ह्रीं श्रीं सर्वांगेषु ध्यानं कुर्यात् अरुणमणिनिभाङ्गम् अग्निकेशं करण्डं धमरुपतरवासं खड्गहस्तं कपालम् अखिल भुवनवन्द्या नित्यकल्याणशीलाम् अखिल भुवनमाता शीतला मारिरूपो शीतला परमेश्वरी विद्यादेहाय नमः श्रीभ्यो नमः ओम जातवेदसे सुनवाम होममरादे अधोनिरः दिवेदः विश्वानावेव सिन्धुन्दुरिताद्यग्निः शीतला परमेश्वरी नमः पुष्पेन्द्रियमा भूर्यां मेधादिकलो भेदं ब्रह्मादिकारणध्याः परमेण सर्वकर्तारं ज्ञानानन्दमयं तन्मयी भूतः द्वादशान्तादे ललाडेवधार्यां वीर्यस्फुटां तिन्मन्नं ध्यात्वा पद्मनामनि गर्द्यां लक्षमूर्तो भाग्ये आवागनमन्त्रिय सद्योजातेन भाग्यां वामदेवेन संस्थाप्य तत्पुरुषेण निरर्द्यां निरोधार्घ्यं दत्त्वा महामारी इति विज्ञाप्य स्वागमिति देवीयोक्तमिति विज्ञाप्य देवी गौरी जगन्मातः यावत् पूजावसानं तावत्त्वं प्रीतिभावेन कुम्भेष्मे सन्निधिं श्रिये नमः सुश्रीदो वरदो भवे सुमुखो भवे देवीं प्रसीद विज्ञाप्य शरमस्थानेषु ओं शरसे नीलिन्ये नमः ओं कवचपाशाङ्गे नमः गृहस्त्राय वाम्भिन्ये नमः एतत्त्वं विभाव्य वस्त्रेण संरक्षकवचेन वन्द्यमूलेन औषधन्नमूलेन महामुद्रया परमीकृत्या सुधान्तेन क्लेशोचमनम् सविता स्वाकान्तेन मनसा धूपदीपो दत्त्वा निर्मर्जनादेन अर्घ्योदकबिन्दुना संस्थाप्य आर्याचमनार्घ्यान् दत्त्वा हेम मकुटकुण्डलाद्याभरणानि मनसा भक्त्या निवेद्य ॐ ब्रां ब्रह्मात्मदत्वाय नमः ॐ ब्रां विद्यादत्वाय नमः ॐ ब्रां शिवदत्वाय नमः इत्यादिभिः पुष्पदानाभ्य अलङ्कृत्य अस्त्रेण गण्डां मनोरथमन्त्रामृतस्य पार्श्वे विरसिद्ध्यासनाय नमः रक्तवर्णाजुलर्गेशीं खड्गवेदकधारिणीं विरसिद्ध्येन महाभाग्ये योनिमुद्रामृतशर्यं विद्वान् आवरणपूजातमदार्य प्रथमावरणे ओं भौमीशानमूर्धाय उमाये नमः तत्पुरुषभक्तराय गौरी नमः ओं अघोरहृदयाय गङ्गायै नमः ओं वामदेवोग्य गणाम्बिकाय नमः ओं हं सद्योजातमूर्ति अम्बिकाय नमः ओं हो नेत्रेभ्यो खड्गिन्ये नमः ओं हृदयाय वामिन्ये नमः ओं ईं शरसे नीलिन्ये नमः नेत्रस्य उत्तरतले विन्यस्य शिखाय चक्रन्ये नमः ओं ऐं कवचाय पाशाङ्गे नमः गृहस्त्राय गाम्भिन्ये नमः कुमारदेवताभ्यः आवाग्ये आवागनादिमुद्रामदस्य अर्घ्यं दत्त्वा पूर्वादन्तस्थानेषु देववार्ये नमः दोयमार्ये नमः परमार्ये नमः कौमार्ये नमः वीरमार्ये नमः भद्रमार्ये नमः जयमार्ये नमः दिव्यां देवताभ्यः वाक्यसम्पूजर्घ्यं दत्त्वा तृतीयावरणे भद्रन्ये नमः दीप्तादेव्यै नमः ओं ह्रीं मन्द्रन्ये नमः ओं ह्रीं मालिन्ये नमः वाक्यसम्पूजर्घ्यं दत्त्वा चतुर्थावरणे ओं ह्रीं शशिदेव्यै नमः ओं ह्रीं स्वाहादेव्यै नमः ओं ह्रीं कालकण्ठे नमः ओं ह्रीं निर्मिन्ये नमः ओं ह्रीं सरस्वत्यै नमः ओं ह्रीं महालक्ष्मी नमः तत्पञ्चमावरणे ओं ह्रीं खड्गाय हुं नमः कपालाय हुं नमः नाराजाय हुं नमः चमरुकाय हुं नमः ध्वजाय हुं नमः क्षुरिकाय हुं नमः आशाय हुं नमः वज्राय हुं नमः पंचासन पंचमावर्ण सहिताय सर्वपरिवाराय सर्वतत्त्वाधिपतये मन्त्रपदवर्ण भुवन तत्त्वकलात्मक शरत्वमूलचन्द्रश्यमान इत्याज्ञानक्रियात्मकरूपिणी वामादि नवशक्ति स्वरूपिणी दुष्टनिग्रह शिष्टपरिवाराणि अखण्डकण्डत्वनि सिंहवागिनी ऐं ह्रीं श्रीं शीतला परमेश्वरी नाम्नालङ्कृत महावार्यं विहाय नहादि मूलेनावाक्ये आवाहनस्थापन सन्निधान सन्निरोध दिग्बन्धनवकुण्ड धेनुदानत्रय योनिमुद्रामदस्य अर्घ्यं दत्त्वा पार्श्वकलशम् अनन्दासन विमानकलशं प्रोक्ष्य अनन्दासन सिंहासन योगासन पद्मासन मध्ये सुरलिङ्गदेवी आसनाय नमः सुरलिङ्गदेवी मूर्ति
नमः विवादञ्जत्रणयनं भस्मकुण्डितविग्रहं शूलशक्तिर्धनुर्गण्डापादचक्रगदाब्जगम् अष्टगस्तशमोपेतं सुभद्रमकुटं तथा रक्तवर्णविशालाक्षमुपानमङ्गलिरुज्जते कुमुदं जङ्गदेशञ्च व्यालान्तं कडिदेशकं कुक्षं वै कुक्षदेशञ्च पद्मार्धमूर्तिरुज्जते मकुटं मकुटोपेतं द्विपार्श्वं करमुच्यते கற்றது கைமண் அளவு தான். அது எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் கற்றது கைமண் அளவு தான். அதே மாதிரி அம்பாளுடைய பேரை சொன்னாலே பெரிய பாக்கியம். மந்திரம் சொல்றதை காட்டிலையும் அந்த அம்பாளுடைய பேர் ஏகதந்தாய வித்மகே வக்ரதுண்டாய தீமஹி ஏகதந்தாய வித்மகே வக்ரதுண்டாய தீமஹி